interference of light, or I can say light, lecture number 2, problems based on interference. Interference मतलब IDSE, Youngster and Fresnel's biprism and biprism experiment, and intensity sums. 3 types of sums I'll be covering. Pay attention over here. Question number 1. Write the question. The path difference between two interfering waves. The path difference between the two interfering waves is 31.5 lambda. कितना दिया हुआ है आपको? 31.5 lambda. The point is, ये जो पॉइंट है वो ब्राइट है कि डार्क है कि क्या है, आई डोंट नो. द पॉइंट इज ब्राइट और डार्क, आई डोंट नो. सो आपको ध्यान रखना है, यहां पर हमको क्या फाइंड करना है बेटा? नेचर ऑफ इल्यूमिनेशन. व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड नेचर, ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला. पाथ डिफरेंस इज k lambda by 2. Path difference is k lambda by 2. If k is even, क्या ब्राइट रहेगा ना, ये कंडीशन है. एंड इफ k is odd, डार्क. मतलब can I multiply this number by 2 and divide by 2? So if this number is the path difference, can I say 31.5 into 2 lambda by 2? So path difference will become, क्या हो जाएगा बच्चा? 63 lambda by 2. 63 is which number? Odd है कि even है? Odd. So odd है, since this is odd, मतलब it will be a dark point. But suppose आपको क्वेश्चन में पूछेगा which dark? डार्क तो है, कौन सा डार्क? मैथ्स में how to write odd number? 2n minus 1 over here, minus 1 will be 63. So 2n is going to become 64. So can I say n is 32? मतलब it is the 32nd which band? Dark band. Got it? 32nd डार्क बैंड. अच्छा, ये इवन होगा तो, अगर ये इवन नंबर आएगा तो आपको क्या लिखना है? 2n से इक्वेट करना है. ऑलवेज रिमेंबर 2n minus 1, नॉट plus 1, बिकॉज n over here starts from 1. Question number 2. They are telling you that the displacement of the waves are given as 3 sin omega t, and second displacement is given as 4 sin omega t plus pi by 2. ये दिया हुआ है. They are asking you find the resultant amplitude. Find the resultant amplitude. Do you know the formula for resultant amplitude बेटा? ये याद है? a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos delta. How much is delta between them? How much is the phase difference between them? 90. Phase difference दोनों के बीच में 90 है ना, देखो ना. And cos 90 कितना हो जाएगा बच्चा? 0. This term will go. So a1 square will become 3 square plus 4 square will be a resultant का square. So a resultant is going to become, what is the answer? 5 units. The simple sums are there. Okay. Suppose एक क्वेश्चन दिया हुआ है, just pay attention. There are 3 waves of amplitude A. 3 waves of amplitude A. First and second differ by 60. कितना फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में? 60. फर्स्ट एंड सेकेंड डिफर by 60. फर्स्ट एंड थर्ड
डिफर बाय 120, ये भी ए है, बट फर्स्ट एंड थर्ड डिफर बाय 120. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? फर्स्ट एंड सेकंड डिफर बाय 60, फर्स्ट एंड थर्ड डिफर बाय 120. Now you know one thing, that we know only to add 2 at a time. Can I add first and third? और आपको पता है कि अगर दोनों A रहेंगे and the angle between them is 120, answer is what? A and 120, answer is also A. So can I say it will be in the direction of the bisector? तो ये already एक A तो है ही, one more A will be due to the sum of this thing. Yes or no? So what will be the resultant answer? 2A, making an angle of 60 degree with respect to 1. Did you understand this thing? First and third को add किया तो A मिला. A and A is 2A. How much is that? Making an angle of 60 with the resultant. आपको पता ही रहेगा. A 120 is A. Question number 4. Okay. They are telling you I maximum to I minimum is 36:1. What is the ratio of the amplitudes? What is the formula for I maximum to I minimum? You know the formula for I maximum upon I minimum. Everyone knows this. It will be A1 plus A2 upon A1 minus A2 the whole square, which is given as 36:1. Can I remove root of this thing? So it will become A1 plus A2 upon A1 minus A2 will become 6:1. Can I do componendo dividendo? तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा. तो यहां पर हो जाएगा A1 upon A2 will become 6 plus 1 upon 6 minus 1 will become 7/5. So what is A1 by A2 का ratio? 7/5. Suppose if they ask you intensity का ratio, you know intensity is proportional to amplitude का square. पूछा तो यहां पर the story is over. But if they ask you what is intensity का ratio, क्या करना है? इसका स्क्वायर कर देना है ना. So it will become what? 49/25. This is not asked, but if they extra ask you, then this will be the pattern. Do you understand? Next question, question number 5. They are telling you I1 is I, I2 is 4I. The maximum intensity and the minimum intensity is how much? What is the formula for maximum intensity? A1 plus A2 the whole square. Can I write that as A1 plus A2 the whole square? Can I write this as root I1 plus root I2 the whole square? Bolo. A1 plus A2 is this, no? And what will be this equal to? Root of I1 minus root of I2 the whole square. Can I consider only numbers? इसका नंबर क्या रहेगा? 1. इसका नंबर क्या रहेगा? 4. तो 1 का रूट क्या होता है? 1. 4 का रूट क्या होता है बच्चा? 2. 2 plus 1 3. 3 का स्क्वायर क्या रहेगा? 9 आए. 9 नंबर इंटू आए ना. एंड इसका क्या रहेगा? 1. एंड इसका 4 का रूट विल बिकम 2. सो 1 minus 2 is minus 1 का स्क्वायर विल बिकम 1 ना. सो अगेन व्हाट विल बी द आंसर बच्चा? I. So what is I maximum? 9I. And what is the minimum intensity? I. So if they ask you what is the ratio of I maximum to I minimum, 9:1.
क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी जितने इंटेंसिटी के सम से आप देख रहे हो वो हम कर रहे हैं। इसके बाद में यंग्स डबल स्लिट, उसके बाद में बाइप्रिज्म। सुनो, अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। I1 is I, I2 is 4I. Delta 1 is pi by 2, Delta 2 डेल्टा A एक पॉइंट A है एंड डेल्टा B दूसरा पॉइंट है जहां पर पाई है। आई वांट टू फाइंड द डिफरेंस इन द इंटेंसिटी एट पॉइंट A माइनस पॉइंट B। दिस इज एट पॉइंट A एंड दिस इज एट पॉइंट B। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो क्या कह रहा है। दो लाइट है, एक का इंटेंसिटी कितना है बच्चा I, दूसरे का इंटेंसिटी कितना है 4I। दे आर मीटिंग एट 2 पॉइंट्स, पॉइंट A एंड पॉइंट B। पॉइंट A पर जब मिल रहा है कितने फेज डिफरेंस से मिल रहा है पाई बाय 2, एंड पॉइंट B पर जब मिल रहा है कितने फेज डिफरेंस से मिल रहा है पाई। तो इधर एक रोशनी रहेगी I1 IA, इधर एक रोशनी रहेगी IB। दे आस्किंग यू इसका इंटेंसिटी माइनस इसका इंटेंसिटी इज हाउ मच। गॉट इट। जब भी डेल्टा के रिस्पेक्टिव में क्वेश्चन आता है यू हैव टू यूज रिजल्टेंट फॉर्मूला। I रिजल्टेंट is I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos delta. This is all done previously in the synopsis। ये सब formulas मैंने synopsis में आपको lecture number 1 में दिए हैं। Now put the value for A। तो for A में formula क्या हो जाएगा? A के लिए I1 कितना है बच्चा? I 4I, 2 root I1 I2, I1 I2 मतलब 4I square का रूट क्या रहेगा? 2I cos 90 ना, 90 है ना पहले। What is cos 90? 0। तो ये टर्म चला जाएगा। तो what is the intensity at A? 5I। Similarly, I'll compare it with B। So what is the intensity at B? I plus 4I plus 2 into 2I into cos pi। cos pi cos 180। What is cos 180? minus 1। तो ये माइनस आ गया। What is 2 into 2? 4। तो minus 4 plus 4 will cancel। What is the intensity at point B? I। So they have asked you IA minus IB. That will become 5I minus I. What will be the answer beta? 4I। And this is important question। सबको समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं? Okay, you cannot miss on this please। अच्छा, एक क्वेश्चन आया। इंटरफेरेंस पैटर्न वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन एयर, देन इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड इन वैक्यूम। किसका बैंडविड्थ बड़ा रहेगा? इंटरफेरेंस पैटर्न वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर। एक्स का फॉर्मूला पता है आपको? लैम्बडा बड़ो डी अपॉन छोटो डी ना। सो कैन आई से एक्स इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा? कैन एनीवन टेल मी हुज लैम्बडा इज बिगर, एयर के वैक्यूम? क्यों? यू नो वन फॉर्मूला दैट म्यू ऑफ एयर कितना है? 1.003। व्हाट इज म्यू वैक्यूम? 1। एंड रिमेंबर वन थिंग दैट म्यू इज इनवर्स टू लैम्बडा। जिसका म्यू बड़ा रहेगा उसका लैम्बडा छोटा रहेगा। तो किसका म्यू बड़ा है? एयर का। तो उसका लैम्बडा छोटा है। सो कैन आई से लैम्बडा एयर इज स्मॉलर देन लैम्बडा वैक्यूम? एक्स का फॉर्मूला मालूम है? तो जिसका एक्स बड़ा रहेगा उसका लैम्बडा भी बड़ा रहेगा। किसका एक्स छोटा है? एयर का। सो एक्स एयर विल बी स्मॉलर एंड एक्स वैक्यूम विल बी बिगर। So whose bandwidth is bigger in whom? Which medium? Vacuum में bands comparatively bigger होता है comparatively to air। ये आपको relation याद रखना है। When the Young's double slit experiment is performed in air, bands are smaller comparatively. When it is performed in vacuum, bands become bigger slightly। लोग क्या समझते हैं दोनों सेम है? तो you will think that bands will remain the same, but they are not the same. It is slightly more।
bandwidth in vacuum is greater than bandwidth in air. Question number 8. अच्छा, इसको करने से पहले, do you remember the formula for fringe visibility? Fringe visibility is I maximum minus I minimum upon I maximum plus I minimum. Please refer the synopsis for fringe visibility. ये आ चुका है. I have given you in Young's double slit experiment. Those who are not copied, please copy the synopsis from someone or refer to my lecture number 1. You'll get it. This question was asked in PMT 2014. Young's double slit experiment. Okay. Path difference of lambda. Path difference. When path difference is lambda, intensity is k. When path difference is lambda by 4, intensity is how much? क्वेश्चन समझा? लाइट है, दो लाइट मिल रहे हैं. जब पाथ डिफरेंस लैम्बडा है तो इसका इंटेंसिटी कितना है, रोशनी कितना है वो पॉइंट पर, के है. जब पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 4 है, सो इंटेंसिटी कितना है हमको पता नहीं है. दिस इज वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर. एवरी ईयर इट इज रिपीटेड, एवरी ईयर. कैसे सॉल्व करते हैं इसको, सुनिए बात अगर प्लीज सुनिए. सबसे पहले पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करिए. हाउ टू कन्वर्ट पाथ डिफरेंस टू फेज डिफरेंस? यू नो फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस. याद है ना ये फॉर्मूला? अरे बाबा बोलो. ओके, तो आप एक काम कर सकते हैं, इधर कितना हो जाएगा, ये लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा ना पहले केस में. तो how much will be the phase difference first case? 2 pi. Intensity is k. And delta 2 कितना रहेगा? Put lambda by 4 here ना. So it will become what? Pi by 2. Intensity is how much? सही है? See, I'll give you a trick. I'll give you a trick. Lambda की जगह put 2 pi. Lambda की जगह put 2 pi. लैम्बडा की जगह पुट 2 पाई, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 ना. अगर आपको फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना है तो इन प्लेस ऑफ लैम्बडा पुट व्हाट, 2 पाई, बिकॉज लैम्बडा कॉरेस्पॉन्ड्स टू 2 पाई. ये मिला कि नहीं? सही है. अच्छा, यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा, इसको है ना गौर से देखिए. फेज डिफरेंस इज 2 पाई. कैन आई से दिस इज इवन पाई? फेज डिफरेंस इज इवन पाई. इवन पाई मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब दिस इज ब्राइट बैंड, मतलब दिस इज इनडायरेक्टली व्हाट, आई मैक्सिमा. इंपॉर्टेंट सम्स है ये भाई. ये डेल्टा फेज डिफरेंस कितना, इवन पाई है. इवन पाई किसका कंडीशन है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट बैंड मिलेगा यहां पर. बराबर है कि नहीं है? इसका इंटेंसिटी हमको चाहिए. इसका पता नहीं लगा सकते आप लोग. ऑड पाई भी नहीं है, इवन पाई भी नहीं है, पता ही नहीं है. इसके लिए एक फॉर्मूला बनेगा. रिमेंबर, आई इज आई मैक्सिमम कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2. सो आई हैड गिवन यू इन द सिनॉप्सिस अगेन. यहां पर डेल्टा डाल दीजिए, तो आई विल बिकम आई मैक्सिमा कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 विल बिकम पाई बाई 4. पाई बाई 4 मतलब क्या, 45. कॉस 45 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 1 by 2. So intensity 2 will become I maximum by 2. देखिए ये क्या था, I maximum था, ये क्या है, I maximum by 2. So what is the ratio of I1 is to I2? नहीं, रेशियो पूछा नहीं है ना. They have just asked you what is I2. तो अगर I1 K है तो I2 क्या रहेगा, K by 2. Please refer this and I'll do 2-3 types of sums more like this so you can get your understanding. Okay? बट ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है. पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करो. कैसे कन्वर्ट करो? लैम्बडा की जगह 2 पाई डाल दो, फिर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो. ये तो देखने से ही पता चलता है दिस इज कंस्ट्रक्टिव.
Are you all understanding? Remember a standard result. दो रेज है S1 एंड S2. दे आर कोहेरेंट. क्या? कोहेरेंट. सपोज यहां से निकल रहा है I और यहां से निकल रहा है I. और ब्राइट बैंड जब बनेगा तो how much will be the intensity? Anyone knows? 4I याद है? When they meet I and coherent sources are there, the intensity of the bright band will become what, bacha? 4I, not 2I. 4I. Provided they are coherent. Coherent matlab the phase difference between them always remains what? Constant. But suppose S1, S2 is there and they are incoherent. What do you mean by incoherent? Phase difference is not constant. And when they meet, you will get 2I. What you will get? 2I. ये प्लीज याद रखना. कोहेरेंट रहेगा तो कितना मिलेगा? 4I. इनकोहेरेंट रहेगा तो कितना मिलेगा बच्चा? 2I. Sometimes they ask you what is the ratio of them. So it will be 2:1. ना? 4I upon 2I will become 2:1. Coherent 4I. Incoherent 2I. Ratio of them 2:1. सुनिए इधर. They are telling you, सुनो इधर क्वेश्चन. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स. डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट क्या होता है? छोटा डी. छोटा डी इज व्हाट? 1 mm. वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 5000 एंगस्ट्रॉम. डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज 1 meter. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट ब्राइट बैंड एंड द 7th डार्क बैंड? Distance between the 7th dark band and the first bright band, by default minus. Now you know why minus? Because they have not told you anything. Monal, what is the distance of the 7th dark band? 6.5x. आधा नंबर माइनस करना है डार्क में से. एंड ये ब्राइट रहेगा तो 1x. So this is 6.5x minus x will become 5.5x. That will become 5.5x. की जगह लिख सकते हैं लैम्बडा बड़ा डी अपॉन छोटा डी. You know everything. You can substitute and get the answer in meters. याद है ना? डार्क बैंड रहेगा तो आधा नंबर माइनस करना है. जो भी नंबर हुआ उससे आधा नंबर डार्क बैंड के लिए माइनस करना है. ब्राइट बैंड के लिए जो नंबर है वही नंबर रहेगा. 1 का 1. सेम साइड सबट्रैक्ट, ऑपोजिट साइड ऐड बाय डिफॉल्ट. Number 11. Okay, now question number 11 क्या कह रहा है? In Young's double slit experiment, one slit is covered with a glass sheet of thickness 2.5 into 10 to minus 5. Thickness कितना है? 2.5 into 10 to minus 5 meters. Due to this position, the CBB shifted to the 30th bright band. Lambda is given as 5000 Armstrong. The refractive index of the glass. मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है. देखिए दो रेज आ रहे थे, यहां पर CBB मिल रहा था. बट हमने जब यहां पर एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस किया, याद है सबको, ऑफ थिकनेस T, CBB जो यहां पर बन रहा था, that shifts to the position of the 30th bright band. मतलब वो यहां पर किधर आ गया? ये तो S1 S2 है ना बच्चा. मतलब जो CBB यहां पर मिल रहा था और 30th bright band यहां पर मिल रहा था,
ये CBB यहां से यहां तक शिफ्ट हो गया, याद है ना कहां पर शिफ्ट होगा, जिस तरफ हम लोग ग्लास स्लैब लगाएंगे उधर इसी तरफ शिफ्ट हो जाएगा. You should know the synopsis, please. Do you know the formula for shift? X by lambda mu minus 1t. What is the formula? X by lambda mu minus. मगर हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे. I'll give you another shortcut formula. I've given you that in the synopsis. Number of fringes shifted is mu minus 1t by lambda. Can anyone by logic tell me how many number of fringes are shifted? How many bands have been shifted? 30. अरे भाई ये जो था ना ओरिजिन, वो 30 का जगह ले लिया, तो कितने बैंड शिफ्ट कर गया? 30. So can I put n की जगह 30? Mu I don't know. minus 1 t by lambda. T कितना है? 2.5 into 10 to minus 5 by lambda. Lambda is 5000 Armstrong. That is 5 into 10 to minus 7. यहाँ से mu निकाल लो, you'll get the answer. Number of fringes shifted is mu minus 1 t by lambda. Do you understand? अच्छा, सपोज क्वेश्चन में बदल दूं, ये लिख लिया आपने, ये कैलकुलेशन बाद में करना, दैट यू नो हाउ टू डू. अगर मैं आपसे कहूं द CBB शिफ्ट्स टू द पोजीशन ऑफ द 30th डार्क बैंड, 30th ब्राइट बैंड नहीं, 30th डार्क बैंड, ये नंबर क्या लिखेंगे आप लोग? 29.5. Then you can do the operation. मोनिल, अगर ये 10th डार्क बैंड रहेगा तो 9.5, 10th ब्राइट बैंड रहेगा तो 10. जो ब्राइट है वही नंबर है, जो डार्क है 0.5 माइनस कर दो. And this is the shortcut. N is mu minus 1 t by lambda. 30th डार्क बैंड, ओके, हाँ, 29.5. Did you understand? Okay. Read a question. NEET 2013 में पूछा गया है. It's an important question, a very important question है. NEET 2013. छोटा d 2 mm, lambda 1 12,000 Armstrong, lambda 2 10,000 Armstrong, capital D 2 meter. At what minimum distance? At what minimum distance? At what minimum distance from the CBB will the bright fringe of one coincide with the bright fringe of other? Will the bright fringe of one coincide with the bright fringe of other? Now सुनिए कैसे करना है इसको. सिंस बड़ा डी छोटा डी सेम है, मैंने आपको बताया था सिनॉप्सिस में, अगर कोइंसाइडिंग का सम आएगा तो क्या यूज करना है? n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2. फर्स्ट स्टेप. Whenever कोइंसिडेंस का सम आता है, सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है, सुनिए, n1 lambda 1, don't write, listen to me, n2 lambda 2. So I can say n1 upon n2 will be lambda 2 by lambda 1. What is lambda 2? 10,000. What is lambda 1? 12,000. Can I say it will be 5 by 6? 5 by 6? Huh? 10 by 12? 15 by 18? मतलब can I say n1 is 5 and n2 is 6? मतलब इसका मतलब क्या होगा? 5th bright band in the first case is coinciding with the 6th bright band in the second case, or
आगे the 10th bride band in the first case is coinciding with the 12th bride band in the second case. और आगे the 15th bride band in the first case is coinciding with the 18th bride band in the second case. But they have asked you minimum distance. मतलब सबसे minimum पर जाओ. Can I say? Can I सुनिए? The 5th bride band of lambda 1 coincides with 6th bride band of lambda 2. पर ये पूछा नहीं है. अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस. पोनेल, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फिफ्थ ब्राइड बैंड? 5x1. कैन आई से 5x1 इज कोइंसाइडिंग विद 6x2? तो या तो आप 5x1 निकाल लो या तो आप 6x2 निकाल लो. दोनों का आंसर सेम आएगा ना, बिकॉज दे आर कोइंसाइडिंग. सो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? 5x1. व्हाट इज x1 बच्चा? लैम्बडा बड़ा डी अपॉन छोटा डी. यानी यहां पर लैम्बडा 1 लिखना है. मतलब 5 लैम्बडा 1 कितना? 12,000 एंगस्ट्रॉम. दैट इज 12,000 इनटू 10 रेज़ टू -10. बड़ा डी 2, छोटा डी 2 mm. Whatever answer you get in meters, that is the answer of minimum distance where they coincide. Got it? This is asked in JEE also. This is asked in NEET also. Many times it has been asked in the exam. ये बता. It was 6 dark band then 5/5. But how will dark coincide with bright? अच्छा ठीक है, आप कह सकते हो ऐसे. Okay. But यहाँ पर bright और bright coincide हो रहा है. अगर यहां पर ये कह रहा है कि डार्क आएगा तो यहां पर 5.5 आ जाएगा ना. Did you understand? तो याद रखना n1 lambda 1 is n2 lambda 2 and then minimum distance के लिए ये. तो 5x1 is coinciding with 6x2. Okay. When do they coincide next time? 10x1 will coincide with 12x2. When do they coincide the third time? ये 15x1 is equal to 18x2. But they have asked you minimum, तो यहां पर जाना है. Correct? Are you all understanding? Okay, write a question. Bandwidth is 0.3 mm. Bandwidth मतलब x ना, बड़ो x. 0.3 mm. If the whole apparatus is immersed in water, of mu 4/3, what will be the new bandwidth? क्या कहेंगे? पानी में डालने से क्या होता है? When you put it in water क्या हो जाएगा बच्चा? X dash will become x by mu ना. X कितना था? 0.3 mm. Mu कितना है? 4/3. 0.9/4 mm. Whatever answer comes. When you put it in water, x becomes x by mu. Got it, no? When the whole YDSE is immersed in water, x becomes x by mu. पार्शियली कैसे इमर्स्ड करेगा भाई? नहीं, बैंडविड्थ का क्या करेंगे आप? बैंडविड्थ तो एक होता है ना. बैंडविड्थ स्क्रीन पर बनेगा तो आधा और पूरे का सवाल नहीं आता है यहाँ पर. ओके, it depends on lambda.
Read a question. Important question. In Young's double slit experiment, if a bright band is formed just opposite to each slit, find the number of the fringe. Find the number of the fringe. देखो क्या कह रहा है भाई, बात सुनिए इधर क्या कह रहा है. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है S1 S2. सुनो इधर, S1 S2 के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? छोटा डी. ये सेंटर है, ये स्क्रीन है ना हमारा. यहां पर क्या बनेगा सेंटर में? CBB. They are telling you opposite to one slit. ये यहां पर ब्राइट बैंड बन रहा है. क्या बन रहा है? ब्राइट बैंड. क्या बन रहा है? ब्राइट बैंड. कैन एनीवन टेल मी ये डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहते हैं इसको? छोटा x. Distance from the CBB is always taken to be what? छोटा x. Can I take छोटा x as d by 2? देखो ना भाई, ये d है ना पूरा, तो ये आधा हो जाएगा ना. This will become what बच्चा? d by 2 ना. So can I say छोटा x is d by 2? बोलो. And you know कौन सा बैंड बना है? ब्राइट के डार्क. ब्राइट के डार्क. ब्राइट के लिए कंडीशन याद है? पाथ डिफरेंस शुड बी n लैम्बडा. पाथ डिफरेंस इज x छोटा d बाय बड़ा d. शुड बी n लैम्बडा. बोलो. अच्छा यहां पर डार्क बनेगा तो क्या होगा? पाथ डिफरेंस विल बिकम ऑड लैम्बडा बाय 2. 2n minus 1 लैम्बडा बाय 2. पाथ डिफरेंस इज x छोटा d 1 बड़ा d. हाउ मच इज x बेटा? d by 2. Can I put d by 2 here? So it will become d by 2 will become d square by 2d is n lambda. So what is the number of the fringe? d square by 2d lambda. This is the number of the fringe which is formed opposite to it. And इसी का स्टेटमेंट हमने आपको सिनॉप्सिस में लिखाया था, called as missing wavelength. मिसिंग वेवलेंथ में हमने यहां पर डिस्ट्रक्टिव यूज किया था. मतलब यहां पर क्या यूज किया था? 2n minus 1 lambda by 2. And you can refer to the synopsis what answer comes. You get d square by odd d. ये ब्राइट के लिए, वो डार्क था. समझ में आ रहा है? अच्छा यहां पर मैं कहूं, मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज करता हूं बेटा. मैं आपसे कहूं ऑपोजिट टू वन स्लिट देयर इज फिफ्थ ब्राइट बैंड. कौन सा ब्राइट बैंड? तो यहां पर कौन सा नंबर डालेंगे? 5 लैम्बडा. बाकी जो ढूंढना है आप ढूंढ सकते हो. ऑपोजिट टू वन स्लिट देयर इज 10th ब्राइट बैंड. कौन सा नंबर डालेंगे यहां पर? 10 लैम्बडा. सेम थिंग. Got it? अच्छा कोई बता सकता है? सुनिए एक ओरल क्वेश्चन. हाउ मच इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन यंग्स एक्सपेरिमेंट? 4 है. कितने स्लिट्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसमें? 2. सपोज एक स्लिट में बंद कर दूं, S1 को मैं बंद कर दूं, तो क्या मिलेगा? सिर्फ लो. सही है बेटा. क्या मिलेगा? I. सिर्फ I. एक ही मिलेगा ना है. तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल? 4:1. पहले 4I था, अभी एक बंद कर दिया तो क्या मिला? सिर्फ I. तो वन ऑफ द स्लिट अगर हम बंद कर देंगे तो क्या मिलेगा? I. और दोनों स्लिट ओपन कर देंगे तो क्या मिलेगा? 4I. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देम? 4:1. डिड यू अंडरस्टैंड? Next question. In YDSE, in Young's double slit experiment, the angular fringe width is 0.2 degree, 0.2 degree. Wavelength of the light is 6000 Armstrong.
when it is immersed in water. What is the angular fringe width? एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है लैम्बडा बाय छोटा डी. आंसर किस में आएगा? रेडियन या डिग्री में. अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? पानी में डालेंगे तो लैम्बडा बाय म्यू हो जाता है ना. सो थीटा विल आल्सो बिकम थीटा बाय म्यू. हाउ मच इज द थीटा का वैल्यू? 0.2 डिग्री ना. एंड हाउ मच इज म्यू फॉर वाटर? 4/3 ना. पता है कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा भैया? 0.6/4 0.15 ना. 0.15 degree. And if they need the answer in radian, then multiply by pi by 180. Actual formula for angular bandwidth is lambda by छोटा d. Angular bandwidth का फॉर्मूला क्या है? लैम्बडा बाय छोटा डी. लीनियर बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या है? लैम्बडा बड़ा डी अपॉन छोटा डी. एंगुलर वर्ड चाहिए तो बड़ा डी निकाल दो. लैम्बडा बड़ा डी अपॉन छोटा डी, तो बड़ा डी निकाल दो तो यू विल गेट एंगुलर. बिकॉज यू नो द फॉर्मूला, लीनियर इज एंगुलर इनटू बड़ा डी. लीनियर इज एंगुलर इनटू बड़ा डी. जैसे हम करते हैं v इज आर ओमेगा. v इज लीनियर, ओमेगा इज एंगुलर इनटू डिस्टेंस ना. तो अगर आप r निकाल देंगे तो आपको सिर्फ ओमेगा बचेगा ना. Getting it? Next question. Question number 16. They are telling you intensity at a point is 1/4 of I maxima. Find the path difference. Find the path difference. हमको वही पुराने फॉर्मूला पर जाना है. I is I maxima. Cos square delta by 2 बोलो. But I is given as I 1/4 I maxima. तो इधर लिख सकते हैं 1/4 I maxima. I maxima cancel. Can I take root? Half. Cos delta by 2 बोलो. Cos inverse of half कितना होता है? Cos inverse of half 60, मतलब पाई by 3 ना. Delta by 2. तो डेल्टा क्या हो जाएगा बच्चा? 2 पाई बाय 3 रेडियन. बट मैंने आपको बताया पाथ डिफरेंस निकालने के लिए 2 पाई की जगह क्या डाल दो? लैम्बडा. सो पाथ डिफरेंस को लिख सकते हैं 2 पाई की जगह मैंने क्या डाल दिया? लैम्बडा बाय 3. सो दिस इज द आंसर ना. 2 पाई की जगह पुट लैम्बडा. और अगर पाथ डिफरेंस है, फेज डिफरेंस ही है, तो लैम्बडा की जगह पुट 2 पाई. डिड यू गेट इट? You need to practice all these things, please. अच्छा, एक क्वेश्चन सुनिए. मैं ये आपको आता ही रहेगा. नंबर 17 सुनिए. इज दिस अ स्टेटमेंट लाइक थिंग? 2 स्लिट्स है, सुनिए जल्दी जल्दी. यहां पर हम ग्लास स्लैब डालते हैं, तो ये शिफ्ट हो जाता है ना यहां पर, पता है ना? व्हाट इज नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड का फॉर्मूला? बोलिए यार. म्यू -1 टी बाय लैम्बडा, बराबर है ना? ये तो आता ही रहेगा, अभी हमने किया. बट सपोज दोनों के रास्ते में हम दोनों स्लैब डाल दें, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड का फॉर्मूला हो जाएगा μ1 माइनस म्यू टी बाय लैम्बडा. ये 1 है ना, 1 मतलब एयर ना. ये एयर था ना, ये म्यू था ना, इसलिए म्यू -1. यहां पर है μ1 माइनस μ2 टी बाय लैम्बडा. सो दिस विल बी μ1 and this will be μ2. This will be the answer.
बाकी नंबर तो निकालने आता है ना, कहेगा कि CBB शिफ्टिंग टू द पोजीशन ऑफ द फिफ्थ ब्राइट बैंड, तो नंबर कितना रहेगा 5, μ1 दिया रहेगा, μ2 नहीं दिया रहेगा, T और लैम्बडा दिया रहेगा. राइट क्वेश्चन, ये आप लोग करेंगे. The fifth brightband of 6,000 Armstrong coincides with nth brightband of 5,000 Armstrong. फाइंड n. कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? n1 लैम्बडा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्बडा 2. चलो n2 फाइंड कर लो. क्या आया 6 ना, 6 आ जाएगा. सही है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाता है, इसको बोनस है पूरा. ओके, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The nth brightband of 6,000 Armstrong, the nth brightband of 6,000 Armstrong coincides with n plus 1th brightband of 5,500 Armstrong. फाइंड n. कर सकते हैं, सबको आता है. n1 लैम्बडा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्बडा 2. तो n1 की जगह n लिखना है, n2 की जगह क्या लिखना है? n प्लस 1. Just cancel, get the answer. क्या है? 11. अच्छा बेटा इधर ध्यान दीजिए. इधर ये क्वेश्चन दिख रहा था ना 17. कोई बता सकता है इसमें एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कितना ऐड होगा? पहले का पाथ डिफरेंस क्या था? x छोटा d y बड़ा d, वो तो था ही. ये स्लैब डालने से देयर विल बी अ पाथ डिफरेंस एडेड ना. द एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आई मेड यू राइट इन द सिनॉप्सिस इज t/2 mu minus 1. ये याद रख के जाना है, एग्जामिनेशन में आ चुका है. रेफर सिनॉप्सिस लास्ट टाइम. Extra path difference added is mu minus 1t. Extra path difference added is mu minus 1t. इधर कितना रहेगा? mu1 minus mu2 into t. mu minus 1t यहां पर है, इधर रहेगा mu1 minus mu2 into t. Can anyone tell me? सुनो. What is the distance between the first dark band and the first bright band? First dark and first bright. 0.5x. First bright 1x. First dark 0.5x. What is the difference between them? 0.5x and x will be what? Lambda bado d upon choto d. So 0.5 lambda bado d upon that will be given to you. Sorry, that lambda bado d upon choto d is given to you. अच्छा, बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में आपको पता है d is under root d1 d2 where d1 is the magnified image and d2 is the diminished image. ये थोड़ा याद रखना है, जिसके इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. d is under root d1 d2. एक क्वेश्चन लिखो. इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट the refracting angle of the biprism is increased. What will happen to the bandwidth? What will happen to the bandwidth? The refracting angle of the biprism मतलब अल्फा.
मैंने आपको सिनॉप्सिस में लिखाया था फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, ये अल्फा कहेंगे, ये अल्फा को हमने बढ़ा दिया। फॉर्मूला लास्ट टाइम हमने लिखाया था आपको d इज इक्वल टू 2a म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। रेफर सिनॉप्सिस अगेन। अल्फा हमने बढ़ा दिया, अल्फा बढ़ा दिया तो छोटा डी बढ़ गया। एक्स का फॉर्मूला याद है, लैम्बडा बड़ा डी अपॉन छोटा डी। तो अगर छोटा डी बढ़ गया तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो बैंडविड्थ विल डिक्रीज एंड दिस विल कम इन द एग्जामिनेशन। इंपॉर्टेंट है ये। फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, रेफर टू लेक्चर नंबर 1। ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने आपको। Write a question. In interference pattern, the CBB is at a distance of 4.7 mm. The CBB is at a distance of 4.7 mm from a point P on the screen. From a point P on the screen. ये कुछ भी पॉइंट है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ये पॉइंट का, मैं आपको बताऊंगा क्या है ये। ओके, द फ्रिंज विड्थ इज 0.2 mm. द फ्रिंज विड्थ इज 0.2 mm. Then the second dark band. Then the second dark band is where? कोई बता सकता है सेकेंड डार्क बैंड मतलब किधर रहेगा? भाई बोलो। सेकेंड डार्क बैंड का डिस्टेंस रहेगा 1.5x, मतलब 1.5x का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में? अरे अभी लिखा है ना मैंने, x का वैल्यू कितना है? 0.2 mm, बराबर ना? So it will become 3 mm. Can I say CBB 0.3 mm ना? 0.3 mm. Can I say CBB के 0.3 mm इस तरफ या CBB के 0.3 mm इस तरफ, दोनों तरफ रहता है। Where is CBB located? 4.7 mm एक पॉइंट से। तो what will be the coordinates of this point? हाँ नहीं, इसके where is the CBB located बच्चा? CBB का कोऑर्डिनेट कितना है? 4.7 mm है ना? तो सेकेंड डार्क बैंड इधर या सेकेंड डार्क बैंड इधर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? 5 mm या 4.4 mm। समझा आपको? तो आंसर रहेगा इधर 4.7 mm और 5 mm ऑन बोथ साइड्स ऑफ द CBB। ठीक है ना? सो आंसर सी है यहां पर, इधर 4.4 और 5 mm डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द P। डिड यू अंडरस्टैंड? अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर CBB को पहचानते कैसा है? दो स्लिट्स होते हैं ना ये। CBB को पहचानने के लिए यू यूज कलर्ड पॉलीक्रोमेटिक लाइट। तो कैन आई से सब बैंड्स कलर्ड हो जाएंगे सिवाय CBB के। CBB विल बिकम व्हाइट। तो जो बैंड व्हाइट रहेगा वही बैंड कौन सा रहेगा? CBB। तो अगर आपको CBB को पहचानना है तो कौन सा लाइट हमको इस्तेमाल करना है? पॉलीक्रोमेटिक। फिर बाद में यू हैव टू कम टू मोनोक्रोमेटिक अगेन, बट फर्स्ट यू हैव टू यूज पॉलीक्रोमेटिक एंड अंडरस्टैंड वेयर इज CBB एंड कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ हिम। एक बार उसका पोजीशन मिल गया तो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द CBB, एंड या द डिस्टेंस फ्रॉम द CBB इज टेकन एज छोटा x।